A very good morning to all the students. We are back after 3 days, है ना? Okay, students. Last class was about the eating habits and the cooking utensils which are used for the cooking purposes. We have seen different methods of cooking. Last lesson हमारा cooking habits पे था, eating habits पे था, on different methods. हमारे different eating habits के अनुसार हमारे food भी different हो जा रहे हैं. We have got different types of food, है ना? हम different food खाते हैं. There are certain food which are boiled, some are steamed, some are fried, some are baked like that. So the last lesson was that, और हम लोगों ने ये lesson complete भी कर लिया है. We had done the value based, and I keep my fingers crossed, and I'll ask anybody randomly, have you finished the question answers which I have given you on last Tuesday for writing in the copy? Let's see. Have kept my fingers crossed. I hope nobody will say no, ma'am. देखो, तन्मय मेरे स्क्रीन में हो. तन्मय, have you done your homework? Have you completed your work? Unmute करो. तन्मय unmute करो. क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है? तन्मय unmute. हाँ. Have you completed your work? Yes, ma'am. Lesson 9 complete है. जोर से बोलो. Lesson 9 complete है. Yes, ma'am. जोर से. Okay, very good. Thank God. Yes, ma'am. Very good. So students, make it a practice. मैं आपको regularly बोल रही हूँ. Don't leave the work for tomorrow. Coming day. आप अपना काम आज के आज complete कर लें. And आपके लिए एक news है. Your examination, annual examination, is supposed to begin from next month. Means by the end of this month. हम लोगों के पास ऐसा information मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है कि next month में आपके exam शुरू हो जाए. In that case, you have to complete your work. आपको complete काम होना चाहिए because आपको पता है कि annual examination में पूरी book आती है ना? You'll be getting the course for that. Syllabus आपको मिलेगा ही and you're having the syllabus also. तो सारे बच्चे इस चीज का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे. तो एग्जामिनेशन एनुअल एग्जाम या तो नेक्स्ट मंथ हो या तो फरवरी के फर्स्ट वीक में हो, बट इट विल बी कंडक्टेड. ओके, तो एनुअल एग्जामिनेशन हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया है. दिस इज द लास्ट चैप्टर व्हिच वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे. आज हम लोग लास्ट चैप्टर करेंगे. द चैप्टर इज वाटर. जैसे ईटिंग जरूरी है, वी नीड टू हैव वाटर आल्सो. हम आज ये लेसन पढ़ेंगे वाटर, है ना? विल स्टार्ट दिस लेसन. इट्स अ वेरी शॉर्ट लेसन, स्मॉल लेसन, बट a very important lesson. तो ये हम कंप्लीट करके उसके बाद we'll start doing the revision. I hope you will cope with me and you'll start doing the revision and start cooperating the teacher while studying. Okay, so I'm going to share my screen with you all. सारे बच्चों के साथ मैं शेयर करूँ वो स्क्रीन. ध्यान रखें, आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए. You must have your book with you. Along with that, you must keep your pencil and eraser. हम पेंसिल इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज पेंसिल आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है. जहां आपको रफ लगे कि दिस इज अ हार्ड वर्ड व्हिच आई मस्ट नो, तो आप इसको पढ़ सके, है ना? उसको अंडरलाइन करें एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस होल सेशन हमें बताएं कि दीज आर द डिफिकल्ट वर्ड्स. मैम वी डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट, और दिस अ न्यू टर्म. डिफिकल्ट तो करना थोड़ा गड़बड़ है. इट्स अ न्यू टर्म फॉर मी, इट्स अ न्यू वर्ड फॉर मी. काइंडली मुझे इसका मीनिंग बताएं. Okay, so everybody, I'm sharing the screen. Okay, chal. This is what the lesson which we are supposed to start today. Okay, water. Before starting this chapter, everybody know that water is an essential for all living being. बिना पानी ना पेड़ पौधे रह सकते, पेड़ पौधे सूख जाएंगे. बिना पानी ना हम ह्यूमन रह सकते हैं, ना एनिमल्स रह सकते. Even the water is present where? हर जगह water present है, आपको दिखेगा. It's present in the air. It's present in the air. It's present in our breath. जो हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, उसमें भी हवा है. फ्लावर को आप क्रश करो, आपके कलर्स एंड वाटरी हो जाएगा आपका हाथ. You touch a leaf, you'll see that it has got water in it. Fruits, काट के देखो, your hand will or your finger will become sticky like. Vegetables, कोई भी सब्जी काटे,
आपको उसमें पानी का अंश मिलेगा. You will see water present in it. Okay, so it is present in everywhere. It's present in fruits, vegetables, leaf, flower, air, and even in our breath. हम जो सांस छोड़ते हैं इसमें भी water के कुछ particles. Now the next is, take out your pencil, everybody. Take out your pencil, everybody. So 4 activities in your daily life where you use water. Standard 2 में आप लोगों ने पढ़ा था 4 uses of water. Where do we use water? Let me stop sharing and let me have a talk with some of the students in the class. Okay, 4 uses of water. उसके पहले हमें पानी जनरली कहाँ से मिलता है पहले हम ये देखें. जैसे पानी की बात होती है, वाटर की बात ये होती है, हमारे जहन में, हमारे दिमाग में पहला आता है हमारा ये रेनफॉल. दिस रेनफॉल, अबंडेंटली ये बारिश आती है, बारिश, रेन. तो ये वाटर पहला आता है दिमाग में. अगर somebody asks you where do you get water from, तो आप जाने this is the natural source of water. वाटर का सबसे नेचुरल सोर्स है स्नोफॉल और रेनफॉल. अभी तो बारिश, अभी तो ठंडी का मौसम है, मैंने भी कैप डाल लिया है आप लोगों की तरह, थोड़ी ठंडी लग रही थी, तो अभी ठंडी का मौसम है ना, तो आप देखेंगे कि इफ यू गो फॉर द न्यूज़ एंड ऑल, अगर आप देखते हो न्यूज और आप अपने पापा मम्मी को न्यूज देखने देते हो, तो बहुत लोग नहीं देते ना, न्यूज नहीं देखना है, बट गिव सम टाइम टू द न्यूज ऑल्सो. तो न्यूज देखते हैं, तो अभी जो है कश्मीर वगैरह में, शिमला वगैरह में बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल. तो 2 नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर जो हम कहते हैं वो है रेनफॉल, जो हमारे बैक में मैंने ड्रॉ किया है. आपकी तरह बढ़िया तो नहीं है, चलेगा, है ना. तो ये रेनफॉल है और एक स्नोफॉल है. और नेचुरली हमें और कहाँ से पानी मिलता है, या फिर आप डेली यूज में पानी कहाँ से यूज करते हैं? नल से करते हैं? आपके घर में नल होता हो, टैप. यू माइट हैव सीन टैप. जस्ट अ मिनट. माइट हैव सीन टैप. हर के घर में टैप होता है ना, टैप वाटर. नलकूप जिसको कहते हैं हम लोग, चापाकल, हैंड पंप. यू गेट इट फ्रॉम हैंड पंप. You also get it from the well. अगर you go to village area, native place, अभी शहरों में भी कहीं ना कहीं कुएं हैं जहाँ पे you get it from the well and the rainfall. बहुत सारे अलग sources also हैं water के. You might get water from pond, पोखर जो होता है, गांव में पोखर भी होते हैं, pond होते हैं जहाँ लोग मछली पालन भी करते हैं. वो पोखर कभी कभी यूज भी होता है फॉर, जहाँ जो साफ सुथरा होता है, जो पॉन्ड दे यूज फॉर टेकिंग वाटर फॉर बाथिंग, फॉर ड्रिंकिंग एंड ऑल. ओके, सो इसके अलावा क्लास 2 में आपने ये पढ़ा है कि वाटर हैज गॉट सम डिफरेंट यूजेस. यू यूज वाटर फॉर, मॉर्निंग से शुरू होते हैं हम लोग, अर्ली मॉर्निंग. जिनकी अच्छी हैबिट होती है वो अर्ली मॉर्निंग दे गो टू वॉशरूम फॉर ब्रशिंग द टीथ एंड फॉर मॉर्निंग केयर. So we use water for bathing, use water for brushing teeth, for washing clothes. तो आप नहीं करते, but use होता है. We use water for drinking purpose. बिना पानी पिए तो हम काम ही नहीं शुरू कर सकते. We use water for cooking. तो आपको 4 uses लिखने हैं इस जगह पे, जहाँ पे क्वेश्चन आप बुक आपने खोला है, उस बुक में आपके 5 शायद हैं ब्लैंक है. You have to write the 5 uses of water which you use it on daily basis. 5 यूज लिखने हैं आपको जो आप डेली बेसिस पे रोज करते हैं, है ना. ये आपके क्लास 2 का रिकैप है. रिकैप ऑफ क्लास 2. क्लास 2 में आप लोगों ने पढ़ा है, उसका एक रिकैप है कि आपने क्लास 2 में क्या पढ़ा था. हमने क्लास 2 में पढ़ा है कि वाटर वी यूज इट फॉर फर्स्ट बाथिंग, सेकंड ड्रिंकिंग, कुकिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, लाइक दैट, ब्रशिंग टीथ. आपको बहुत सारे मिलेंगे, आपको सिर्फ 5 लिखने हैं. लेकिन कोई बच्चा यूज में ये नहीं भूलेगा, वी यूज वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स. हम अपने को याद रख रहे हैं, तो आपके डेली बेसिस का डेली काम का पहला काम ये भी है, अगर आपके घर में प्लांट्स है तो उसकी वाटरिंग करना. तो वी यूज वाटर फॉर वाटरिंग द प्लांट्स. ओके, चलो अब मैं वापस स्क्रीन आती हूँ और मैं देखती हूँ कितने. अच्छा, बच्चों ने हाथ नहीं उठाया था, सॉरी मैंने देखा ही नहीं. एनीवेज, जो बच्चे हाथ उठाए थे मैं उनसे दोबारा पूछूंगी. I'm going to share my screen with you people. See, ये हमारा चल रहा था लेसन.
Okay. 4 activities in your daily life where you can use water. आप लिख लेंगे 4 एक्टिविटीज? रोहित नारायण लिख पाओगे? रोहित, will you able to write? Yes मैम, थोड़ा जोर से बोलो, थोड़ा जोर से बोलो, हो जाएगा? यस मैम। वेरी गुड। तो तुम 4 यूज क्या लिखोगे? What are the 4 uses? आपको लिखने बोला जाए तो क्या लिखेंगे 4 uses? मैम Drinking, okay, next. मैम ड्रिंकिंग, बाथिंग, बाथिंग, बोलिए। Cooking, मैम कुकिंग, okay, and last? एंड मैम ब्रशिंग। ब्रशिंग, ओके। मैंने अभी कहा आपको, आप चारों में एक तो जरूर लिखिए वाटरिंग प्लांट्स। चलिए म्यूट करें अपने आप को, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके, नाउ द लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर, लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर। इन सिटीज वी गेट वाटर फ्रॉम टैप। मैंने ड्रॉ किया है बोर्ड पे, यू कैन सी इट ऑन बोर्ड, है ना? इन सिटीज, हमें शहरों में हम पानी कहाँ से मिलता है? आपके घर में आपको कुएं से पानी लाना नहीं पड़ता, ना ही आपको वहां से लाना पड़ता है नलकूप चला के, यानी हैंडपंप चला के। यू गेट इट फ्रॉम वेयर? यू गेट इट फ्रॉम द टैप। हर के घर में वॉशरूम में टैप होता है, किचन में टैप होता है, जस्ट यू ओपन द टैप एंड यू आर गेटिंग वाटर। बट एट सम प्लेसेस वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द अंडरग्राउंड। देखो कुछ जगहों पे पानी को जमीन के नीचे से, अंडरग्राउंड से निकाला जाता है, एंड दैट इज कहां से? विद द हेल्प ऑफ हैंडपंप। आपको मैंने हैंडपंप भी बना के दिखाया है, and some from the well. आप देखिए यहाँ पे, at some places people get water from lakes, ponds and rivers. अभी ये बताया आपको ना कि बहुत जगह गांव वगैरह में अभी भी लोग पानी नदियों से लेके आते हैं। एक मिनट, मैं वापस क्लास में जाऊं। कितने बच्चे गांव जाते हैं? हाथ उठाइए। और कितने बच्चों ने गांव में देखा है कि नदी से पानी लेके माँ घर के लोग आ रहे हैं? करने दो, आई विल एबल टू सी इन दैट। हाँ, हाथ उठाओ तो। ओरे बाबा, वेरी, ओ माय गुडनेस। यानी कि आपको पता है कि गांव में या ऐसे जगहों पे हमें नदी से भी पानी मिलता है। यस, वेरी गुड। वी गेट वाटर फ्रॉम पॉन्ड। नदी से ही नहीं, तालाब भी होते हैं जहां से लोग रेगुलर बेसिस पे पानी लेते हैं फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर ओन डेली नीड। कपड़े धोना हो, बर्तन धोना हो। हम लोग फिल्मों वगैरह में भी देखते हैं ना, लोग गांव से जा रहे हैं मटके में मटका लेके नदी के पास, वहां से पानी लेके आ रहे हैं। फॉर दे यूज इट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। हमारे अपने घरों में तो वी आर बीइंग प्रिविलेज्ड वन। हम लोग प्रिविलेज्ड है, हमें नदी नहीं जाना पड़ता। वी डोंट हैव द वेल, वी हैव गॉट टैप इन आवर हाउस। हमारे पेरेंट्स इतने हैं कि हमें, हमारे घरों में अभी भी टैप है। तो शहरों में ये फैसिलिटी है, शहरों में ये फैसिलिटी है that we get this water from tap, हमारे घरों में आते हैं। लेकिन अभी भी कुछ जगहों पे, नेटिव प्लेस चल जाओ, आपके गांव में चल जाओ, वहां अभी भी लोग नदी का पानी यूज करते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, विच इज नॉट वेरी सेफ। लेकिन अब वहां पे वही सिस्टम अभी तक है, तो हम लोग वही यूज कर रहे हैं। ओके, चलो बैक टू, okay, so at some places people use water from river, lake and pond. They also draw water from well. यहाँ पे आपने देखा होगा कि लेडी जो है कुएं से पानी, कितने लोगों ने कुआं देखा है? Have you seen well? हाथ उठाओ। बाबा, वेर so many of you have seen well. Okay, चलो, इसके बाद है दिस इज द नेचुरल सोर्स। अब आते हैं कि सोर्स ऑफ वाटर, वाटर का सोर्स क्या है। बिफोर दिस आपको बताएं, मैंने क्लास 2 में आपको पढ़ाया है, क्लास 2 2 जो भी थे, कि अर्थ इज नोन टू बी अ ब्लू प्लैनेट। कोई बताएगा मुझे व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। कैन एनीवन से व्हाई इट इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट? अच्छा, बहुत सारे हाथ दिख रहे हैं मुझे। वेरी गुड, सात्विक सिंह बताइए। सात्विक अनम्यूट करें। Why Earth is called a blue planet? Thank you, ma'am. Ma'am, Earth is covered from water.
Earth is covered from. Ma'am, Earth is covered from. Earth is called a blue planet because 3/4 of the surface of the Earth is covered with water. आपने आंसर सही दिया बेटा, डोंट गेट वरीड. आपने आंसर सही दिया, बट आपका उसको सजाने का तरीका, बिकॉज आपने अभी इंग्लिश में साइंस ये पढ़े ना सेंटेंस, तो सेंटेंस में आपको वर्ड्स के पोजीशन पे ध्यान देना है. ओके. एंड दूसरी बात, कौन बताएगा व्हाट इज 3/4 मीन? व्हाट डज 3/4 मीन? कौन बताएगा? हाथ उठाओ जो बताएगा मुझे. व्हाट डज 3/4 मीन? ओके. कीर्ति रंजन बताओ तो बेटा, व्हाट डज 3/4 मीन? 3/4 का मतलब क्या होता है? मैम, अर्थ सरफेस. 3/4 का मतलब क्या होता है? मैम, मतलब पानी, मतलब 3/4 है. तो मुझे बता दो 3/4 का मतलब क्या होता है? मैम, about. About, Ma'am, yes. about 3/4. Ma'am, about 3/4 of the Earth's surface covered with water. 3/4 का मतलब बताओ आराध्या सिन्हा. What is 3/4? बोलिए आराध्या, आप अनम्यूटेड हैं. 3/4 का मतलब बताइए. What does 3/4? 3 out of 4. 3 out of 4, exactly. Very good, yes. यानी अगर हम अपने अर्थ को 4 टुकड़ों में हम सोचे, तो 3 टुकड़ा उस 4 टुकड़ों में से, आउट ऑफ 4, 3, 4 टुकड़ों में से 3 टुकड़ा पानी है. पानी ही पानी है ना. एंड सिंस वहां सारा तरफ पानी ही दिखता है, दैट इज व्हाई. अनम्यूट कर, अपने आप को म्यूट कीजिए आराध्या. That is why it is said to be a blue planet. पानी जो है वो ब्लू दिखता है ना. पानी water looks blue. तो अगर 3/4, 4 टुकड़ों में 3 टुकड़ा पानी होगा, तो it will look like a blue. It will look like blue. That is why Earth is said to be a blue planet. आराध्या सिन्हा, अपने आप को म्यूट कीजिए. Okay. So 3/4 of the. आराध्या सिन्हा म्यूट कीजिए अपने आप को. नहीं, आपका उनसे बात कराएगा. Okay. So Earth is covered with 3/4 of the part of the Earth is covered with water. That is why it is said to be a blue planet. Okay. So natural source of water, पानी हमें कहाँ से मिलता है अर्थ में? हमें अपने अर्थ में पानी हमें कहाँ से मिलता है? We get water from lake. कहाँ पानी है? पानी है लेक्स में, पॉन्ड्स में, वेल में, रिवर में, सी में, ओशन में. ये 5-6 वर्ड आपको क्लियर है? लेक का मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे लेक का मतलब? किसको आता है? स्वस्ति सहाय. Are you there? Yes, बेटा आप लोग की तरफ से आप लोग म्यूट नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल है. आप लोग अनम्यूट कर दे रहे हैं and the class is getting disturbed. Okay, तो on Earth water is present in lake, river, pond, well, sea and ocean. इतना जगह पानी है और it's completely a large area of the Earth is covered with water and that is why it is said to be the blue planet. Even आप देखेंगे अगर आप जाते हैं पिकनिक करने, तो कोशिश करते हैं हम लोग कि पिकनिक स्पॉट्स भी हो वो रिवर और लेक के नजदीक हो, है ना. ऐसे भी पिकनिक स्पॉट्स आर ऑफन डेवलप. जहां नदियां हैं उसके बगल में पिकनिक स्पॉट डेवलप किए जाते हैं ताकि वहां का जो पानी है, जो वाटर है, बीइंग यूज्ड फॉर बोटिंग एंड अदर वाटर स्पोर्ट्स. आप देखेंगे लोग गर्मियों के दिनों में पूरी जाते हैं, सी बीच, दीघा जाते हैं. दीघा ये आपके पटना वाला दीघा नहीं, वेस्ट बंगाल में है. दीघा जाते हैं, जुहू मरीन बीच जाते हैं फॉर पिकनिक. बिकॉज यहाँ पे भाई खाना भी लेके गए, हम लोग खाना भी खाया. उसके बाद use this water present in those sea, ocean or river for the boating purpose, for the water sports and all, है ना. यहाँ पे देखिए और वाटर का क्या यूजेस है.
रिवर, लेक एंड पॉन्ड एंड वेल गेट वाटर मेनली फ्रॉम रेन एंड स्नो। आप देखेंगे कि जो इसमें यूज होता है, हमारे नलके में पानी होता है, टैप में पानी आता है, एक कॉर्पोरेशन के थ्रू आता है ना, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, वहां पे पानी को स्टोर करके दिया जाता है। बट इन लेक, रिवर एंड पॉन्ड, दिस दे गेट वाटर मेनली फ्रॉम स्नो और रेन। जो रिवर, लेक एंड पॉन्ड में वाटर आते हैं, दे गेट इट मेनली फ्रॉम द रेन और स्नो, बारिश से या फिर स्नोफॉल से ये पानी भरते हैं। इनका मेन सोर्स है फ्रॉम रिवर, लेक, पॉन्ड और वेल। रिवर, लेक, पॉन्ड और वेल मेनली गेट दिस वाटर फ्रॉम रेनफॉल और स्नोफॉल। ये हमारे नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, ठीक है। दे गेट इट फ्रॉम रेन वाटर और स्नोफॉल। नलके का पानी क्या है, जो नल का पानी है, दे आर आल्सो रेन वाटर, लेकिन ये अंडरग्राउंड वाटर है। आप देखेंगे जो टापा नल होता है जिनके घर में, तो ये वाटर जो है जमीन के बहुत नीचे है, अंडरग्राउंड वाटर है, एंड वी गेट इट फ्रॉम दोज। अब आते हैं, लेट अस लर्न अबाउट टू मोर मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। मैंने अभी शुरू में बताया कि दो मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है। टू मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आर, आराध्य श्रवण बताएंगे मुझे? मैंने क्लास की शुरुआत में आपसे बताया है द टू मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर क्या है, बताइए आराध्य, मैंने आपको म्यूट किया है। आराध्य श्रवण, Arya Mishra, will you give this answer? What are the two main natural sources of water? Arya Mishra? आर्य मिश्रा, अनम्यूट करेंगे अपने आप को। अच्छा, आराध्य कुमारी ने फोन हाथ उठाया है, क्लास 3E, बोलिए आराध्य कुमारी। टू मेन नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर, बोलो बेटा। Snow and rain. Very good, it is snow and rain. Snow and rain. Snowfall and rainfall, these are the two main natural sources of water. Now come for this, नीचे आएंगे, पेज नंबर 77। रेन, कितने लोगों को बारिश अच्छी लगती है? हाथ उठाओ, गिव अ थम्स अप, लेट मी सी, कितने लोगों को बारिश अच्छी लगती है? ओहो, सभी को अच्छी लगती है। यस, वी ऑल लव रेनफॉल, हमें अच्छा लगता है, एवरीबडी लव्स रेनफॉल। ओके, सो चलें हम लोग वापस। संस्कृति यादव को अच्छी नहीं लगती, शी इज नॉडिंग हर हेड लाइक दिस। संस्कृति अच्छी नहीं लगती ना, बीमार पड़ जाते हो। ओके, you must have enjoyed bathing in rain. For what? For that you do not need water from a tap or bucket. बारिश में नहाना सबको अच्छा लगता है। इसके लिए क्या होता है, बाल्टी की जरूरत नहीं, मग की जरूरत नहीं, सीधा बारिश नेचुरल शावर की तरह ऊपर से गिरता है, स्काई से, एंड वी एंजॉय। सबको शावर में नहाना अच्छा लगता है ना। वॉशरूम में हम लोग शावर खोलते हैं गर्मी के दिनों, एंड वी लव टू टेक अ बाथ इन शावर। सभी को शावर में नहाना अच्छा लगता है। अब वो नेचुरल शावर हो तो बात ही कुछ और है। तेज बारिश हो जाए तो लगता है कि अपना अपना नहा लिए, कितनी मजा आता है बारिश में नहाना। डू यू लव बाथिंग इन रेन? कितनी मम्मी परमिशन देती है नहाने के लिए? बोलती नहीं नहीं नहाना है, बीमार पड़ जाओगी। नहीं देती ना? ओके, नहीं देती No, मम्मी, ma'am. मम्मी परमिशन नहीं देती है। No, अच्छा ma'am. अच्छा, इस बार बारिश हो, अभी जाड़े के समय नहीं, अब समर्स में इफ यू सी द रेनफॉल, यू टेक अ परमिशन फ्रॉम योर मदर, माँ एक बार नहाने दो मुझे, पूरे बारिश में भीगने दो, इसकी मजा ही कुछ और है। कभी कभी हो सकता है, रेगुलर बेसिस पे मैम बाहर कीचड़ हो जाता है। ओ, इसलिए मम्मी मना मैम करती बाहर है, कीचड़ रहता है। इसलिए माँ मना कर देती यस है। मैम। ओके, म्यूट कीजिए। ओके, रेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर। सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर रेन है। लेक, पॉन्ड, रिवर, ये सारे में जो पानी आती है, पोखरों में, तालाब में, नदियों में जो पानी आती है, ये मेनली फ्रॉम रिवर, रेन वाटर होता है। यही बारिश का पानी होता है जो गिरता है और रेन में वो रिवर में जाता है। रिवर आप सुनते होंगे ना, बहुत तेज बारिश हुई, नदी के पानी में बढ़ोतरी हो गई, नदी का पानी ऊंचा हो गया,
गंगा जी अपने लेवल से ऊपर आ गए। तो रेन वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर ऑल दिस थिंग्स। लेक, पॉन्ड, रिवर, दे ऑल गेट वाटर फ्रॉम। कितने को म्यूट करो बेटा, कितनी म्यूट करो, म्यूट कीजिए। मैम एक चीज पूछना है आपसे। Okay, so the river flows from sea to ocean, from river flows into the sea और an ocean। बारिश का पानी जब नदियों में आता है, यहां से ये पानी नदियां जाके कहाँ मिलती है? समुद्र में मिलती है, यानी ओशन में मिलती है, सी में मिलती है। अ पार्ट ऑफ रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड। बारिश जब होता है ना, तो जैसे समुद्र नदियों में पानी बढ़ता है, ऐसे ही कुछ पानी इसके जमीन के नीचे भी जाते हैं। यू कैन सी ओवर हियर, देखो जब बारिश का पानी हो रहा है तो अ पार्ट ऑफ वाटर गोज इनटू द सी, इनटू द ग्राउंड, अंडरग्राउंड। बारिश जो हुई, इससे कुछ पानी जो है वो जमीन के नीचे भी जाती है। ये है जमीन, है ना, इसी पानी नीचे गया और जाके बनाता है अंडरग्राउंड वाटर। एक लेवल आता है, एक लेयर आता है वाटर विच इज कॉल्ड अंडरग्राउंड वाटर, जहां से हमने इसको फिर से उसको निकालते हैं थ्रू हैंड पंप, थ्रू डीप बोरिंग, एंड वी यूज इट फॉर आवर डेली लाइफ, डेली नीड। तो ये रेन वाटर ही मेन नेचुरल सोर्स है, चाहे वो नदियों का पानी हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर। बारिश का पानी मेनली नदियों में जाता है, पॉन्ड में जाता है, लेक में जाता है, बट अ पार्ट ऑफ वाटर जो कि जमीन पे गिरा, ये जमीन में मिट्टियों से नीचे होते हुए अंडरग्राउंड पहुंचता है, एक लेवल जहां पे सिर्फ और सिर्फ पानी होता है ना, जिसको कि हम चापाकल के थ्रू, आप अगर डीप बोरिंग देखें, अगर आपने कहीं देखा है कि डीप बोरिंग करते कैसे है, देखेंगे डीप बोरिंग की जाती है, पाइप नीचे तक डाला जाता है, वहां से उन्हें हैंड पंप के थ्रू पानी को निकाला जाता है, या फिर पंप, इलेक्ट्रिकल पंप के थ्रू पानी को बोरिंग के साथ उसे अपने टंकियों में भराया जाता है। ठीक है, ओके, सो दिस इज द अंडरग्राउंड वाटर विच इज ऑल्सो which is also filled by this rainwater only. Okay, so a part of rainwater goes underground. जो पानी है कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड भी जाता है, जहां पे ये ग्राउंड वाटर कहलाता है, and this groundwater is used for by the plant for the growth. People draw it from well. हम इसे या तो कुएं के थ्रू यूज कर लेते हैं बाहर, या फिर हैंडपंप के थ्रू, या डीप बोरिंग के थ्रू दे यूज इट, है ना। बहुत जगहों पे इन मेनी प्लेसेस रिवर वाटर इज प्यूरिफाइड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। अभी मैंने बताया था गांव वगैरह में लोग नदी का पानी पीते हैं, तो नदी का पानी गंदा होता है? गंदा नहीं होता बेटा, वो इम्प्योर वाटर होता है। बहुत बार अगर हम नदी को गंदा रखते हैं तो, लेकिन उसको डायरेक्टली पिया नहीं जाता, दे आर बीइंग प्यूरिफाइड। उसकी प्यूरिफिकेशन होती है, या तो बॉइलिंग होगा या फिल्ट्रेशन होगा, देन दे आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। और हमारे घर में जो पानी आता है वो मोस्टली प्यूरिफाइड ही होता है। हमारे घर में जो पानी आता है म्यूनिसिपल की तरफ से, वो भी प्यूरिफाइड ही होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने घर में एक्वागार्ड लगाते हैं या फिर वाटर फिल्टर रखते हैं, ताकि जो पानी आया तो उसमें थोड़ी सी भी गंदगी हो वो फर्दर प्यूरिफाइड हो जाए। तो वी गेट दिस प्यूरिफाइड वाटर एट होम थ्रू टैप्स। तो टैप के थ्रू हमें ये वाटर मिलता है। रेन इज द नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर प्लांट एंड क्रॉप ऑल्सो। रेन का इतना ही नहीं है, इज अ नेचुरल सोर्स है इरिगेशन का। फसलों में आप अगर गांव में की बातें जानते हैं, जानेंगे, अच्छी बारिश होने से कहते हैं बहुत अच्छी फसल होगी। सुना है कभी ऐसी बातें? आपके दादाजी या फिर जो गांव में रहते हैं, कभी ऐसा बोला है आपसे कि, या अपने घर में डिस्कशन सुना है, बड़ी अच्छी बारिश हुई है, इस बार तो फसल बहुत अच्छी होगी? तो बेटा जो वाटर है, रेन वाटर है, ये नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है। इरिगेशन मतलब प्लांट्स में पानी देना इन अ ह्यूज अमाउंट is said to be irrigation, watering of plants. तो कहते हैं कि rain is a natural source of irrigation from plants and crops also. Rain water washes away dust and dirt from the leaves of the plants. बहुत तेज बारिश अगर होती है, कितना कुछ पानी रेन वाटर करता है, ये इसको बता रहे हैं। रेन वाटर नदियों का पानी बढ़ाता है, रेन वाटर ग्राउंड का पानी बढ़ाता है। रेन वाटर अगर बारिश बहुत अच्छे से हो, जंगलों में जो पेड़ है वो भी खिल जाते हैं, क्योंकि उनको वाटर ग्राउंड से मिल जाता है। तो रेन वाटर अगर बहुत अच्छा हो तो जो हमारे टंकियों में पानी वो जल्दी भर जाते हैं, है ना। रेन वाटर अच्छा हो तो हमारे टैप्स में पानी अच्छे आते हैं, है ना।
और रेन वाटर अच्छे से, रेन अगर अच्छा से हो तो नेचुरल सोर्स ऑफ इरिगेशन है, फसलें अच्छी सी होती हैं। नहीं नहीं, बहुत तेज बारिश, हमारे पेड़ों के ऊपर के डस्ट, देखोगे पेड़ के ऊपर अगर धूल पड़ी है, बहुत बारिश हो जाए तो लगता है ना वो पेड़ पौधे नहा वहा के तैयार हो गए आपकी तरफ। तो वैसा ही होता है, जब बहुत तेज बारिश होती है तो जो उसके ऊपर डस्ट, धूल, मिट्टी, गंदगी सारे वॉश ऑफ हो जाते हैं एंड द प्लांट लुक ग्रीनर, फ्रेश एंड मोर ब्यूटीफुल आफ्टर रेनफॉल। हम नहा लें, नहा के जब हम वापस क्लास में आते हैं, घर में आते हैं, तो क्या होता है, हम फ्रेश लगते हैं। अगर आप नहाते नहीं है तो बड़े गंदे गंदे से लगते हो ना। वैसे ही रेन का क्या इंपॉर्टेंस है, सोचो। रेन जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, वो आपकी नदी के पानी को लेवल को उठाता है ना। बारिश पोख तालाब में पानी भरता है। रेन वाटर नेचुरल इरिगेशन है, नेचुरल मेथड ऑफ इरिगेशन है। बहुत अच्छी बारिश हुई तो देखना किसान बहुत खुश होते हैं, अरे वाह हमारी फसलें अच्छी होंगी, हमारा क्रॉप अच्छा होगा, है ना। बारिश बहुत अच्छी होगी तो कुछ जो पानी जो जमीन पे गिरेगा वो पेड़ों के द्वारा लिया जाएगा, और कुछ पानी जमीन के नीचे जाके ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाएगा, तो हमारे कुएं में पानी अच्छा से आ जाएगा। में ज्यादा पंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी आराम से ऊपर आएगा। और इतना ही नहीं, बहुत अच्छा बारिश होगा तो हमारे प्लांट्स जो कि गंदे धूल दूसरे हो जाते हैं, गर्मियों में लू चलती है तो गंदा हो जाता है, धूल मिट्टियां भर जाती हैं, वो प्लांट्स भी बारिश के बाद those plants will look greener and look fresh. ओके, तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे, हम लोग आगे नहीं पढ़ेंगे, बस यहीं तक पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपसे मेरा